Hello guys. So today we are going to start with our lesson circles, and this is with CBSE grade 9. This is the 10th chapter, one of the most important chapters we need to pay attention to. Okay, so let's see what we have here in this chapter. So basically, let's say this is a circle, and let's say this is a space. Okay, circle is a very common thing we see around us, but a couple of things that we don't observe about circle. Correct. Let's first of all draw a center to this circle. Right now, this part which falls inside the circle, this is called as the interior of the circle. The part of the circle or the area which is inside the circle, in the interior part of the circle, is called as the interior. Within the circle, this is called as the interior of the circle. This line here, if we have to show this line, this point here, okay, I'll put up an arrow here, say this point here, this is called on the circle. Correct. This is called on the circle, and this entire remaining area, which is this space, this is called exterior of the circle. This area is called as the exterior of the circle. Correct. So we can consider these to be the parts of the circle, as though we understand that there are parts of the circles, which is the border of the circle, the interior of the circle, and the exterior of the circle. Correct. One of the most important concepts which we must know about circle is what we are going to learn in this lesson. Correct. Now before I go ahead, I want to tell you all that this lesson has a couple of properties of circles which are primarily defined in form of theorems. We are going to see what these theorems are. Okay, we'll go to the next slide. All right. And so what are we having in this particular slide? See, so let's say equal chords of a circle subtend equal angles at the center. What does that mean? Equal chords, or meaning suppose you have, this is a circle and this is a center. So this is one chord. Let us say this is chord A and this is chord B. So let's say this is chord A and this is chord B. There's another chord on the same center. So this is chord C and this is chord D. Correct. Now let's say this is our given statement. A circle with center O. Correct. हमको दिया है ए बी chord and सी डी chord. These chords are equal chords of a circle. क्या दिया है कि these chords are equal chords of the circle. क्या प्रूफ करना है हमको? See, we have to prove that एंगल ए ओ बी. अब एंगल ए ओ बी कैसे होगा वो देखते हैं. एंगल ए ओ बी, we'll have to draw two lines for that, which we will do, is equal to एंगल डी ओ सी. तो पहले वो एंगल तो क्रिएट करते हैं. वो एंगल कैसे क्रिएट होगा? like this and like this. So what we have to prove? We have to prove that this angle is equal to this angle is what we have to prove. Correct. So let's see how this proof goes. Okay, देखो, we have two triangles. Very prominently we have two triangles here. And what are those triangles? Let us say in triangle AOB, in triangle AOB and triangle DOC, triangle DOC. What do we have here? Check. Now we have AO equal to OD. Why? AO equal to OD. Why are we saying that they are equal? That is because they are radii of the same circle. Correct? Radii of same circle. Reason लिखना बहुत ज़रूरी है. Correct? This is radii of the same circle. Then we have AB is equal to CD. Why are we saying that? Because it is given to us. हमारे मन से कुछ नहीं बोल सकते हम लोग. Correct. And then we have OB which is equal to OC. OB equal to OC क्यों? Again same thing. O अपना क्या है? O अपना center है. Correct.
ओके, ओ बी इक्वल टू ओ सी क्या है? दे आर ऑल्सो द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर कैन वी से दैट ट्रायंगल ए ओ बी is congruent to triangle DOC by which rule now? By SSS rule, correct? Now, so therefore in this case can we say that angle AOB is equal to, can we say that angle AOB is equal to angle DOC by CPCT, and that is why we can say it is hence proved, correct? आप एक बार खुद करिए, आपको ज़्यादा अच्छी तरह से पता चल जाएगा. ओके, I will do it, you will always find it easy, but if you do it only then you will come to know the level of difficulty that you are facing, correct? आसान सा ये है. अच्छा, ये चैप्टर में क्या है? दे गिव यू वन थियरम. अब एंगल्स इफ द कॉर्ड्स आर इक्वल तो दे आर सेइंग दैट द एंगल्स आर इक्वल. अब उल्टा भी प्रूव करना पड़ता है कि अगर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल है क्या? तो दैट ऑल्सो वी विल हैव टू प्रूव, करेक्ट? दैट वी विल डू इन दी नेक्स्ट प्रूफ, करेक्ट? देखते हैं क्या है. सो बेसिकली देन यहाँ पे the statement of the theorem says that it is theorem 10.2 that if the angle subtended by the chord of a circle are at the center, wait one second, if the angle subtended by the chord of a circle, ये r एक्स्ट्रा है, at the center are equal then the chords are equal, करेक्ट? मतलब क्या दे रहे हैं वो लोग? दे आर सेइंग दैट अगर ये आपका सर्कल है, करेक्ट, और ये सेंटर है, अगेन ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है. अभी हमको ये इसमें भी हमको ये नहीं पता कि ये कॉर्ड्स इक्वल है कि नहीं है, करेक्ट? ओके, तो व्हाट इज गिवन टू अस? वी आर गिवन सर्कल विद सेंटर ओ. फिर लेट अस टेक दिस इज आवर कॉर्ड ए बी जो हमने पहले भी लिया था, एंड दिस इज आवर कॉर्ड सी डी, करेक्ट? ओके, दे आर सबटेंडिंग इक्वल एंगल्स. मतलब क्या? ये जो एंगल्स हैं, अभी what is given to us? It is given that this angle is equal to this angle. That is what they have given, equal angle at the center. So ये जो ये O है ना यहाँ पर, तो now it is given to us that is it is given that angle AOB is equal to angle DOC. अब प्रूफ क्या करना है फिर? अब प्रूफ हमको ये करना है कि AB is equal to CD. This is what we have to prove. तो कैसे करेंगे इसको प्रूफ? देखो, अभी यू कैन सी दैट देयर आर टू ट्रायंगल्स, करेक्ट? सो वी कैन से इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC व्हाट डू वी हैव? देखो तो वी हैव अगेन OA इज इक्वल टू OD. क्यों? OA this is equal to this, correct? OA is equal to OD. Why it is equal? Because it is radii of the same circle, correct? Radii is a plural for radius. Radii of same circle. एक one radius, many radii, correct? Radii of same circle. Okay. फिर क्या है? अभी एंगल AOB is equal to angle DOC. Q. Why are we saying that? Because it is given to us, correct? And then lastly we have this side is equal to this side. So we can say OC is equal to, we can say that OB is equal to OC, correct? Why? Again the same thing, because they are radii of the same circle. That means, can you see that these two triangles are congruent by which criteria? Therefore, we can say that triangle AOB is congruent to triangle DOC by which criteria? By SAS criteria or rule. So, if these two triangles are congruent, then therefore we can say that AB is equal to CD
by CPCT. Correct? AB is equal to CD by CPCT. Correct? एकदम easy है, and then we can say therefore hence proved. Correct? I hope you guys are getting it. Right? एक बार खुद करो तो ही पता चलेगा. मैं करूँगी तो हमेशा आसान ही लगेगा. Are you getting it? Okay, so now we will see the next theorem, which is going to be theorem number 10.3, and one of the most important concepts. काफ़ी सारे proof जब हम करते हैं तो इस concept को हम use करते हैं. So what is that concept? It says that the perpendicular from the center of the circle on the chord of the same circle obviously bisects the chord. What are they saying? इसका मतलब suppose ये circle है, ठीक है, और ये हमारा center of the circle and this is our chord. Let's name the chord. Say this is chord AB, ठीक है, and we have a line which is perpendicular. ये center है ना, ये center है, देखो ये center है और यहाँ से ये line सीधी आ रही है. करेक्ट? जब वो सीधी आती है तो यहाँ पे it is making a 90 degree angle. Correct? When it is making a 90 degree angle, that means it is perpendicular and that is why it is making a 90 degree angle. ये center हमारा O है. Correct? Now इसको अगर हम join करते हैं तो you can see that prominently आपको दो triangles दिखाई देंगे. Correct? Now what else? What is given to us? That means it is given that a circle with center O दिया है, chord AB दिया है, and we have देखो एक circle दिया है, correct? Center दिया है, chord AB दिया है, and ये जो OX हमने X नहीं लिखा है यहाँ पर, तो I will write X here, यहाँ पे X, correct? OX is perpendicular to AB. Proof क्या करना है? AX is equal to BX. हमको ये proof करना है कि this line is equal to this line. Correct? ये जो half है, देखो if this line is equal to this line, that means this perpendicular exactly at the middle of AB. ये हमको proof करना है यहाँ पर. Correct? So let's see. अभी obviously all of us can see that there are two triangles formed there. Correct? तो वो दो triangle पहले भी हमने वही किया है. When we prove these two triangles congruent, obviously we know that we will be able to show that they are that means we can show that the sides are equal. Correct? CPCT से तो करना भी वही है हमको. So let us say what is the proof? Proof में क्या बोलेंगे हम लोग? That in triangle से OAX, O कौन सा triangle है देखो? OAX ये triangle, this complete triangle. Correct? In triangle OAX and which other triangle? The other one. Correct? And triangle OBX. Correct? The other one कौन सा? ये OAX, ये OBX. Correct? Okay. OAX अभी देखो एकदम आसान है. We have angle OXA. Angle OXA is equal to angle OXB. आपको पता चल रहा है? Both are 90 degree. Correct? Both are 90 degree. क्यों 90 degree? हमारे मन से बोल रहे हैं हम लोग? नहीं, क्योंकि वो given है. कौन सी एंगल की बात करें? ये 90 डिग्री, दोनों भी 90 डिग्री ना. तो इफ बोथ आर 90 डिग्री वी कैन डेफिनेटली से दैट दे आर इक्वल. करेक्ट? फिर वी हैव OA इज इक्वल टू OB. क्यों? कौन बोलेगा OA इक्वल टू OB? अरे भाई हाँ, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. ओके, रेडियाई ऑफ the same circle. Singular radius, plural radii. Radii of same circle. ठीक है. फिर ये OX जो लाइन है ना, ये OX जो ब्लू कलर की जो लाइन है, ये ब्लू कलर की लाइन अपने आप से ही इक्वल होगी ना ऑब्वियसली. सो यू कैन से दैट इट इज इक्वल टू इटसेल्फ. कॉमन साइड है ना ये दोनों ट्रायंगल की. OX इज इक्वल टू OX. क्यों? क्योंकि दिस इज अ कॉमन साइड. देखा?
तो आर वी एबल टू प्रूव, तो कौन सा रूल हुआ देखो, ये ग्रीन कलर की जो लाइन है दैट इज योर हाइपोटेन्यूज, ये तो 90 डिग्री और एक साइड भी आ गया, तो आर एच एस, करेक्ट। So therefore we can say that triangle OAX is congruent to triangle OBX by which rule? By RHS rule, correct? तो अगर RHS rule से congruent हो गए तो can we say that therefore AX is equal to BX. Why AX is equal to BX? Because CPCT, correct? Hence proved, करेक्ट। बहुत ज़्यादा आसान है, या कुछ भी नहीं है। आप एक बार वीडियो देखो, वीडियो को बंद करो, खुद से ट्राई करो और आपको आ ही जाना है, करेक्ट। देयर इज़ नो टू वे अबाउट इट। अभी मैंने पहले भी बोला था ये लेसन में ऐसा है, आप जो प्रूफ करते हो उसको उल्टा वापस प्रूफ करना होता है, करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट थियरम क्या है। सो इसी से बनेगा हमारा नेक्स्ट थियरम। नेक्स्ट थियरम का स्टेटमेंट क्या है, दैट द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अब ये उल्टा प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है यहाँ पर, कि भाई ये सर्कल है, ठीक है, अब ये सेंटर है, तो ये सेंटर को नाम देते हैं ओ, ठीक है, ओके। अब ये कॉर्ड है, कॉर्ड भी हमारा है ए बी, डायग्राम भी सेम लगेगा आपको, ओके। फिर अभी ये लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं है, वी डोंट नो दैट, करेक्ट। रिवर्स इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पर, करेक्ट। ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया। अब ये इन दिस पर्टिकुलर थियरम दे आर सेइंग दैट they have given us that these sides are equal and we have to prove that it is 90 degree. Now it is not given that it is 90 degree. देखो तो we have given that a circle with center O, okay, AB is the chord and OX bisects AB. Bisect का मतलब क्या होता है, equal half में divide करता है, that means we know that AX is equal to BX, correct. Proof क्या करना है हमें, we have to prove that OX is perpendicular to AB, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, अभी देखो तो बहुत आसान है ना भाई, पहले से ऐसे ही करना है, करेक्ट। दो ट्रायंगल दिए हैं, दो ट्रायंगल लेंगे, क्या करेंगे, दैट इन ट्रायंगल ए ओ एक्स, देखो तो अभी जैसे जैसे लाइक आई एम राइटिंग, यू गाइस हैव टू सी विच ट्रायंगल आई एम टॉकिंग अबाउट, करेक्ट। ए ओ एक्स एंड ट्रायंगल बी ओ एक्स एंड ट्रायंगल BOX, क्या हो रहा है इसके अंदर, वी हैव OA इक्वल टू OB, कौन बताएगा, भाई सेम ही है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, करेक्ट, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। अब क्या और क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, देखो तो पहले जैसा OX इज इक्वल टू OX भी लिख सकते हैं, वो ब्लू लाइन तो कॉमन साइड है ही, करेक्ट, कॉमन साइड। और क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, AX इज इक्वल टू BX, ये भी दे के रखा है, AX इज इक्वल टू BX, दिस इज गिवन टू अस, करेक्ट। अब इतना सिंपल है, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये भी साइड हो गई, तो करेक्ट। सो व्हाट आर वी हैविंग, देयरफॉर कैन वी से दैट ट्रायंगल AOX is congruent to triangle BOX by SSS rule, correct. So therefore can we say that angle, देखो यहाँ पे ये खत्म नहीं होता, तो can we say that angle AOX, sorry, angle OXA या AXO, angle AXO is equal to angle BXO by CPCT। देखो ये यहाँ पे ये ख़त्म नहीं होता, ये आगे जाएगा, और क्यों, अच्छा ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब आई विल डू इट ऑन द अदर साइड यहाँ पे, ओके। अगर ये दोनों इक्वल है, ओके, अच्छा दीज टू एंगल्स आर ऑन द सेम लाइन, दैट मीन्स दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, करेक्ट। कैन वी से दैट एंगल, यहाँ पे बता सकते हैं हम लोग कि
1 second. Okay, we can write down that angle AXO and नहीं तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे उसमें लिख लेते हैं, रुको. तो we can write down like this that angle AXO plus angle BXO is equal to 180 degree. Why? Because they are linear pair. Correct? They are linear pair. ठीक है. That means अगर ये, और हमने क्या बताया यहाँ पर, इन द अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट 1 दे आर इक्वल. अगर वो इक्वल है तो इफ दैट मीन्स इफ दिस, इसको अगर हम लोग x मानते हैं तो इसको भी तो x ही मानेंगे ना, दोनों को सेम मान सकते हैं. करेक्ट. एनीवे x तो नहीं मानेंगे बट वी कैन रिप्लेस वन एंगल विद द अदर. करेक्ट. तो अगर इक्वल है तो इंस्टेड ऑफ AXO, मतलब यहाँ पे अगर मैं AXO लिखती हूँ तो अगर ये भी इक्वल है तो BXO की जगह पे भी AXO लिख ही सकती हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, इक्वल है ना. तो दैट इज इक्वल टू 180. करेक्ट. तो ये कितना आएगा, 2 एंगल AXO इज इक्वल टू 180 डिग्री. फिर एंगल AXO इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब अगर AXO ये 90 डिग्री आया तो हमने तो बताया कि ये दोनों इक्वल है, फिर ये भी 90 डिग्री, तो देयरफॉर बोथ द एंगल्स आर 90 डिग्री. करेक्ट. So therefore we can say that OX is perpendicular to AB. तो यहाँ पे फिर आता है hence proved. करेक्ट. आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस. काफ़ी सिंपल से थियरम्स है, आप उनको फटाफट खुद भी करो. आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, आई एम इंसिस्टिंग ऑन यू गाइज डूइंग दिस थियरम्स ऑल बाय योर सेल्फ, क्योंकि डिफिकल्ट है नहीं ज़्यादा, आप कर ही पाओगे उसको, प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. तो उसके बाद वाला और एक थियरम देखते हैं. यहाँ पे 10.4 आ जाना चाहिए था. आई विल चेंज इट. ओके. तो 10.5 थियरम है, इसका प्रूफ नहीं है, बस ये आपको जानना होता है, ये आपको समझना है, इसका प्रूफ है ही नहीं कुछ. करेक्ट. तो थियरम ऐसा है कि अगर आपको, इफ़ यू आर गिवन 3 पॉइंट्स, करेक्ट, ये पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर. ये पॉइंट कैसे हैं, दीज आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स on there is one and only one circle passing through 3 non collinear points. मतलब आप कहीं पे भी 3 पॉइंट्स रखो तो आप अगर सर्कल ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से एक ही सर्कल जाता है. करेक्ट. दैट इज व्हाट. तो अगर आप ड्रॉ करो तो ये एक ही सर्कल, इट विल पास थ्रू ऑल द 3 पॉइंट्स. करेक्ट. तो ये सेंटर है. ओके. यहाँ पे PQR हमारे पॉइंट्स है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जो मैंने अभी लिखे नहीं, अभी लिख देते चाहिए तो ये हमारा P है, ये Q है, ये R है, और प्रूफ करना है वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. लिखा तो मैंने है यहाँ पर, लेकिन ये प्रूफ एक्चुअली प्रूफ नहीं करना है आपको, सिर्फ यू हैव टू नो ओनली फॉर इंफॉर्मेशन. एंड यूज इन प्रूफ्स. करेक्ट. एक्चुअली प्रूफ कोई भी आएगा कि नहीं ये पता, मतलब नहीं आ सकता, ये प्रूफ नहीं आएगा फॉर श्योर. ओके. आपको सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से एक ही सर्कल जाता है. ठीक है. दैट इज व्हाट ओनली फॉर प्रूफ एंड यूज इन प्रूफ्स. बस उतना ही करना है. थोड़ा हैंड राइटिंग सीधा कर लेते हैं. ओके. तो आप दूसरे कोई प्रूफ करेंगे उसमें इंफॉर्मेशन आपको यूज करनी है. करेक्ट. दैट इज व्हाट इट इज. ठीक है. आई होप यू गाइज आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. जैसे जैसे हम लोग आगे आगे करेंगे और खुद भी आप करोगे, मैं बार बार ये बोलती हूँ, खुद भी आप करो. ये बंद करो, वीडियो देखो, उसे बंद करो, पॉज करो और खुद ट्राई करो. दैट इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग. करेक्ट. चलो फिर तो नेक्स्ट में जाते हैं. Okay then, so we'll see the next theorem that we have. So our next theorem is the theorem 10.6. This theorem says that equal chords of a circle are equidistant from the center. एक circle हो या many circle. That's why I have said that it is either the congruent from one circle or many congruent to circles. Okay. What are they trying to say?
सपोज ये हमारा सर्कल है, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अच्छा, एक कॉर्ड, इसे कॉर्ड को वील गिव दिस कॉर्ड नेम से ए बी। We have another chord and that chord is CD. Okay, it has been given to us कि this chord is equal to this chord, है ना। अच्छा, next is that ये जो distance है, suppose हमारा ये center O है और ये X है, okay, और यहाँ पे भी same, ये suppose Y है। One property we know कि ये the perpendicular from the center, करेक्ट, ये जो परपेंडिकुलर है सेंटर पे, जो हमको इट इज गिवन टू अस, दिस इज 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री है, देयर इज अ प्रॉपर्टी दैट वी डिड सम टाइम बिफोर विच सेज दैट दीज टू आर इक्वली डिवाइडेड। करेक्ट, ठीक है, तो यहां तक तो आई थिंक वी हैव अंडरस्टूड। नाउ एज यूजुअल हमने देखना है कि यहां पर वी ऑल्सो हैव AO एंड OC। व्हाट आर दे? दे आर दी radii of our circle। तो अभी देखते हैं what is given to us। It has been given that a circle with center O and AB and CD are two equal chords of the circle, correct, ये this is what is given to us, and we have AB is equal to CD, वो हमको पता है, ये जो पूरा AB chord है this is equal to CD, ये याद रखना है, बहुत important information है। and we have to prove that OX is equal to OY। OX क्या है? ये OX is equal to OY। ये दोनों, these blue lines are actually the distance of this chord from the center। इतना दूर है ना, तो they are the distance of the chord from the center। ये proof बताने के लिए I have divided this board in some parts because it is easy for me to work like that, that is why। okay, so let's see पहले तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, ये एक इंफॉर्मेशन है दैट वी नो दैट सिंस वी कैन से सिंस OX is perpendicular to AB, if OX is perpendicular to AB, then we can say that AX is equal to BX, which is equal to half of AB। तो यहाँ पे सर्कल की वो प्रॉपर्टी जो हमने पहले देखी थी, दैट प्रॉपर्टी वी आर यूजिंग, कौन सी प्रॉपर्टी थी वो अगर आपको याद है, दैट अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स द कॉर्ड इन इक्वल हाफ। ये x जो है वो मिड पॉइंट है, करेक्ट। ओके, सो वो प्रॉपर्टी हमको पता है, नहीं पता तो आप लिख लेना आपके बुक में, करेक्ट। तो अगर आपको याद नहीं है तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट हियर बिकॉज, इसके लिए रीजनिंग है ये, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग ये प्रॉपर्टी ऊपर लिखते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी नीचे का प्रूफ लिखते हैं, ठीक है। आई थिंक दैट इज बेटर टू अंडरस्टैंड, ठीक है, एक सेकेंड। सो लेट्स डू इट लाइक दिस, दैट बिकॉज वी कैन से एज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड क्या करता है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये प्रॉपर्टी यूज करके वी कैन से दैट, देयरफॉर वी कैन से दैट AX इज इक्वल टू BX इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, क्योंकि मिड पॉइंट है तो हाफ ऑफ AB आएगा, करेक्ट। लेट अस से दिस इज आवर स्टेटमेंट 1। ओके, similarly can we say that the same thing applies for the CD chord also, correct, जो CD है। so can we say that since OY is perpendicular to CD
अगर OY is perpendicular to CD, because of the same property, can we say that CY is equal to DY is equal to half of CD? Let us say this is our statement 2. Correct? Now what is given to us? It is given, what is given to us? It is given to us that AB is equal to CD. ये हमको दिया है. तो if AB is equal to CD, then we can say that, therefore we can say that half of AB will also be equal to half of CD, है ना. अरे कोई भी चीज़ अगर आपके पास और आपके दोस्त के पास सेम क्वांटिटी में है तो उसका हाफ करोगे तो वो फिर भी दोनों के पास सेम क्वांटिटी में ही रहेगी. करेक्ट. दिस विल टेक अस टू वेयर इट कैन से दैट हाफ ऑफ AB, हाफ ऑफ AB मतलब क्या, ये ट्रायंगल है ना, उसी की साइड लेंगे हम. AX इज इक्वल टू CY ले सकते हैं ना हम अभी. वी कैन टेक दैट AX इज इक्वल टू CY, देयरफॉर वी कैन से दैट AX इज इक्वल टू CY. ओके, ऑलराइट. तो ये हुआ हमारा स्टेटमेंट 3, क्योंकि यहाँ पे 2 पूरे हो चुके हैं तो स्टेटमेंट 3. Now we have these two triangles. So can we say that therefore in triangle OXA and triangle OYC, क्या आता है यहाँ पर OXA और OYC में? तो हमारे पास अभी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है देखो. वी हैव OA इक्वल टू OC, क्योंकि दे आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. ओके. एंड देन वी हैव एंगल OXA, दोनों 90 डिग्री है ना. एंगल OXA इज इक्वल टू एंगल OYC 90 डिग्री. करेक्ट. ये 90 डिग्री है. थोड़ा हैंड राइटिंग ठीक ही लिखेंगे तो अच्छा है ना. 90 डिग्री. ओके. एंड वी ऑलरेडी नो दैट AX इज इक्वल टू CY. AX इज इक्वल टू CY. क्यों बोल रहे हैं हम ये? हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट फ्रॉम स्टेटमेंट 3. करेक्ट. सो देयरफॉर कैन वी से दैट ट्रायंगल AOX, triangle AOX is equal to triangle COY, not equal to, sorry, is congruent to triangle COY by which property? By RHS ना, right angle hypotenuse and side. करेक्ट. देखो RHS है ना, ये राइट एंगल से राइट एंगल मैच हुआ, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज मैच हुआ, और ये साइड से ये साइड मैच हुई. RHS से हो गया ना. सो बाय RHS रूल. Correct. Therefore we can say, what can we say therefore? Therefore we can say that OX is equal to OY by CPCT, है ना, by CPCT. ये आपको ध्यान रखना है. ओके, 1 सेकेंड. OX इक्वल टू OY, ये आपका फाइनल स्टेटमेंट है जो जरूर है. तो ये बोलते हैं हेंस प्रूव्ड. करेक्ट. आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस. ये प्रूफ थोड़ा कर लो, दूसरे सारे सम्स करने के लिए भी काम आता है. इट विल हेल्प यू आउट. ओके. Okay, abhi 10.6 is done and we have to see the next theorem which is 10.7. अब I have always been saying कि ये लेसन में एक theorem prove किया है और उसका converse against it, यानी the reverse of it has also been proven. This theorem that we are seeing right now is the reverse of 10.6, which is chords equidistant from the center are equal in length. इसका मतलब क्या है कि डायग्राम हमारा लगभग सेम ही रहेगा, राइट. तो दिस इज आवर सर्कल, ये हमारा सेंटर है. लेट्स से दैट आवर सेंटर इज गोइंग टू बी O. ये हमारा एक कॉर्ड है. लेट्स से दिस इज आवर कॉर्ड AB एंड वी हैव अनदर कॉर्ड. वी विल नेम इट एज CD. As usual, we are going to have
this line which is perpendicular on this axis, and we are going to have the other side which is also perpendicular on the CD chord, correct? Alright. Acha, we also know that we have two radii in this figure. So this is our figure. Now let us see what is given to us. It is given that C is a circle with center O. ठीक है? AB and CD are two chords. AB and CD are two chords. देखो अभी this information that the chords are equal is not given to us. Okay, where OX is the distance from the center. Now they have taken this center, correct? ये distance उन्होंने बोला है कि OX is perpendicular to OB and OY is distance from the center. Okay, OY should be यहाँ पे आना चाहिए. OY is यहाँ पे होना चाहिए is perpendicular to CD, correct? अच्छा, ओके ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है. OY इज द डिस्टेंस. ओके, यहाँ पे हमको प्रूफ करना है कि AB इज इक्वल टू CD. ओके, लेट्स सी क्या करना है यहाँ पर. तो हमारा प्रूफ, अगेन दिस इज अ लिटिल लेंथी प्रूफ, तो आई हैव डिवाइडेड द बोर्ड इन अ कपल ऑफ पार्ट्स दैट जस्ट हेल्प्स मी टू कीप द वर्क क्लीन. ठीक है, चलो नाउ वी हैव, अभी सारा कुछ दिया ही है, तो वी विल स्टार्ट विद आवर ट्रायंगल्स इन AOX एंड COY, correct? So let's say that in triangle AB, acha wait, my sequence of this I think all through. Okay, so we will name this as C and D like this. Okay, so now यहाँ पे क्या आएगा कि in triangle AB we have to prove that AB is equal to CD. So in triangle AOX and triangle DOY, मैंने पर्पसली यहाँ पे DOY लिया है क्योंकि पहले में COY लिया था, तो यू शुड नो कि वो है तो ये उसका रिवर्स है, करेक्ट, कॉन्वर्स, करेक्ट. ओके, नाउ ये दोनों भी ट्रायंगल में एंगल OXA इज इक्वल टू एंगल OYD, चेक करना, करेक्ट. ये दोनों और ये दोनों क्योंकि दिया है ना, दोनों परपेंडिकुलर है, इट इज गिवन टू अस, करेक्ट. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? सी, बिकॉज इट इज गिवन टू अस कि वो परपेंडिकुलर है ना दोनों, तो ये दोनों भी बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर, दिस एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, करेक्ट. So we will write here it is going to be 90 degree which is given to us actually. Okay, then we have OA is equal to OD which is the radii of the same circle, correct. And then we have OX which is equal to OY. ये information हमको दिया हुआ है, it is given to us that OX is equal to OY, correct. OX is equal to distance from the center and OY is the distance from the center. तो यहाँ पे लिखना रहेगा OX is equal to OY. This is given to us. Okay, all right. That means what? That means very easily we can say that triangle AOX is congruent to triangle DOY by RHS, क्योंकि right angle है, hypotenuse है और ये एक side है, correct? This side and this side, correct. So we can say by what rule they are congruent, by RHS rule. So then if they are congruent, then can we say that AX is equal to DY because of CPCT? Therefore we can say that AX is equal to DY by CPCT. ठीक है, इसे हम लोग नंबर कर देते हैं 1. Okay, now let's see where we are heading towards. तो यहाँ पर फॉर कॉर्ड AB कॉर्ड के लिए देखते हैं पहले क्या है. फॉर कॉर्ड AB क्या है हमारे पास कॉर्ड AB के लिए, तो परपेंडिकुलर जो है ये डिस्टेंस, तो वी नो दैट दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस. तो फॉर कॉर्ड AB, सिंस OX is perpendicular to AB, we can say that AX is equal to AB, correct. AX is equal to AB, no sorry, AX is equal to BX.
ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, करेक्ट। तो अगर दोनों भी इक्वल है तो वी कैन वेरी क्लियरली से दैट ए एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी एक्स, करेक्ट। आई एम सॉरी, तो देखो एक बात समझो, ये पूरा जो कॉर्ड है ए बी, ये पूरा ए बी, दिस एंटायर ए बी कॉर्ड, कैन वी से इट इज ए एक्स प्लस बी एक्स, करेक्ट। वी कैन से करेक्ट दैट ए बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। अरे लेकिन बी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ना, तो इसके जगह पे हम ए एक्स लिखेंगे चलेगा, तो वी कैन से दैट ए बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए एक्स। दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू 2ax, करेक्ट। या इसे हम कहेंगे स्टेटमेंट 2, ठीक है। अभी द नेक्स्ट स्टेटमेंट वी हैव वो क्या है, ओ वाई कॉर्ड के लिए, सो वी कैन से फॉर कॉर्ड ओ सॉरी सी डी। अभी ये पूरा रामायण लिखने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से यू विल अंडरस्टैंड दैट, करेक्ट। सो वी कैन से दैट व्हाट इज गिवन टू अस, ओ वाई इज परपेंडिकुलर टू सी डी, करेक्ट। देन कैन वी से दैट सी डी इज इक्वल टू, डायरेक्टली यही लॉजिक अगर आप लगाओगे वहां पर, अच्छा आई जस्ट राइट इट लिटिल स्लो बिकॉज आई एम रनिंग अ लिटिल थिन ऑन स्पेस, सॉरी। सो वी हैव ओ वाई इज परपेंडिकुलर टू सी डी, this implies that dy is equal to cy. If dy is equal to cy, then we can say that the entire cd is equal to 2 dy, correct. This is our statement 3, correct. अभी now see, पहले हमको दिया है कि ax from the first हमको क्या मिला यहाँ पर येलो में जो है वो, see from 1 we have ax is equal to dy, करेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आई है ax की और dy की, अगर ax is equal to dy, तो देन कैन वी से, देन देखो 1 सेकेंड, if ax is equal to dy, then we can very easily say that 2ax is equal to 2 dy, करेक्ट। और 2 dy क्या है भाई, 2 dy और 2 ये क्या है 2ax, व्हाट इज 2ax, देखो यहाँ पर 2ax is equal to ab, करेक्ट। तो इसके जगह पे आई कैन राइट डाउन ab is equal to, ये क्या है 2dy, 2dy is equal to cd, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग cd, क्या हुआ therefore hence proved। गेटिंग इट, इसे ऐसे करते हैं, ऑलराइट। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन नाउ, ओके। तो we have finished up to 10.7. This is 10.8 theorem of the circle lesson. देखते हैं what is this got to say. The statement of the theorem says that the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. जब हम ऐसे बड़ा बड़ा पढ़ते हैं तो हमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन अगर आप तोड़ तोड़ के पढ़ो तो यू विल अंडरस्टैंड इट मच बेटर। व्हाट आर दे सेइंग, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। तो पहले तो हम देखते थे एक सर्कल, ठीक है, ठीक है, सर्कल का एक सेंटर भी है, ठीक है। नाउ दे आर सेइंग दैट एन बाय एन द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। तो पहले आर्क बनाना पड़ेगा, तो लेट अस ड्रॉ आर्क। कौन सा हुआ, कौन सा आर्क हुआ, देखो दिस इज दी, ये आर्क है ना, दिस इज दी आर्क, करेक्ट, दिस इज दी आर्क। सो दे आर सेइंग दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर, ओके, इज डबल द एंगल। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर क्लैरिटी पर्पस वी विल गिव दिस P एंड Q,
ठीक है, तो यू गिव दिस नेम एज पी एंड क्यू और सेंटर को दे देते हैं हमेशा की तरह, यू विल कॉल इट एज ओ। अच्छा, तो ये जो आर्क है, दिस पी क्यू आर्क दैट वी हैव, correct, this PQ arc that we have, this PQ arc is creating one angle at the center and it is creating one angle at the circumference, sorry, एक सेंटर पे क्रिएट कर रहा है और एक सर्कमफरेंस पे क्रिएट कर रहा है। अब ये सर्कमफरेंस पे जो एंगल क्रिएट करा है ना, वो कहीं पे भी क्रिएट हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पे भी, एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, that is what they are saying, correct? So we are talking about one point, ठीक है, ये point को हम लोग नेम कर देते हैं, we will call this point as say A, okay? अच्छा, let us see, we will एक लाइन रखते हैं, ये एक्चुअली कंस्ट्रक्शन है, बाद में आता है यहाँ पर, we will do the construction, ठीक है, ओके। प्रूफ क्या कर, सॉरी, what is given to us? A circle with center O, yes. Arc PQ, yes. Of the circle subtended, POQ एंगल सेंटर पे सबटेंड किया है। सबटेंड मतलब वो आर्क जिससे एक एंगल फॉर्म होता है। सबटेंड मतलब ये जो आर्क हमने मार्किंग किया है, वो आर्क मार्क करने के वजह से जो एंगल क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड सबटेंडेड एंगल। तो ये यहाँ पे सबटेंड हो रहा है एक एंगल विच इज POQ। दूसरा एंगल कहाँ सबटेंड हो रहा है? सर्कमफरेंस पर सबटेंड हो रहा है, करेक्ट, एट ए। और ए कहाँ पे हो सकता है? ए कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ या ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। पी और क्यू का ये एरिया छोड़कर रिमेनिंग पार्ट कहीं पर भी ए हो सकता है, ओके। सो दैट इज व्हाई दे आर सेइंग ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। प्रूफ क्या करना है हमें? वी हैव टू प्रूव दैट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू twice the angle PAQ is equal to, क्या हो गया, is equal to twice the angle PAQ, है ना? अरे जब हम देख रहे हैं, that time itself we know that the angle at the center is a little larger than the angle at the circumference, लगभग डबल डबल तो नजर में ही पता चल रहा है। हाँ, लेकिन ये ज्योमेट्री है, प्रूफ तो करना पड़ेगा, है ना? ठीक है ना। बिफोर वी डू आवर प्रूफ, ओके, प्रूफ से पहले मैं यहाँ पे ये प्रूफ निकाल देने वाली हूँ, और प्रूफ से पहले हमें यहाँ पे करना पड़ेगा एक कंस्ट्रक्शन। ये जो ग्रीन लाइन हमने ड्रॉ करी है यहाँ पर, तो आई विल मेक श्योर दैट आई राइट इट विद द ग्रीन कलर। द ग्रीन लाइन दैट वी हैव टेकन, दैट एक्चुअली इज आवर कंस्ट्रक्शन। तो क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने? बंगला गाड़ी घोड़ा। तो ये कंस्ट्रक्शन किया है कि ये जो लाइन है बी, ओके, यहाँ तक ए बी हमने ड्रॉ करी है। वी विल जॉइन ए ओ एंड एक्सटेंड इट अप टू बी। यही उतना ही कंस्ट्रक्शन है हमारा, करेक्ट। देखो, ये प्रूफ के एक्चुअली 3 केसेस है, ओके। ये केस 1 है और एक केस आएगा केस 2, केस 3। ऑल द प्रूफ्स विल लुक द सेम, ओके। फिगर्स अलग अलग है, प्रूफ सारे सेम है, क्योंकि वो P और Q का जो, ये P और Q एज इट इंक्रीजेस, अगर P यहाँ पर है तो ये प्रूफ, अगर P यहाँ पर है तो थोड़ा अलग, अगर P अलग, सो P का पोजीशन जैसे जैसे चेंज होता है P एंड Q का, वैसे वैसे आपका प्रूफ चेंज होता है। तो प्राइमरीली 3 केसेस है, देखते हैं क्या है। तो कंस्ट्रक्शन इज दैट जॉइन AO एंड एक्सटेंड अप टू, एक्सटेंड कहां तक करना है? टू पॉइंट B, ओके। सो ये इसे जनरल केस माना जाता है, केस 1 को, ठीक है। वी विल सी व्हाट इट इज केस 1। तो देखो, वी आर कैन सी देयर इज 1 ट्रायंगल एंड देयर इज 2 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल तो हमको दिखाई दे रहे। तो लेट अस से इन ट्रायंगल, क्या बोलेंगे? APO, करेक्ट, इन ट्रायंगल APO, इन ट्रायंगल APO। अब प्रूफ चालू करना है हमको यहाँ से, कंस्ट्रक्शन के बाद ये प्रूफ। अभी नाउ आई कैन इरेज, अब ये प्रूफ है, ठीक है।
ओके, इन ट्रायंगल APO क्या है हमारे पास APO में? देखो तो OP इज इक्वल टू OA। क्यों? क्यों है OP इक्वल टू OA? अरे भाई, दे आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल ना, दे आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब तक तो ये बाय हार्ट हो जाना चाहिए, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल ना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, फिर देखो एंगल OPA, करेक्ट, ये एंगल अगर ये दोनों इक्वल है तो ये एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, नो, करेक्ट, सो वी कैन से दैट एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OAP, है ना, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ओके, सो अगर आप एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी देखते हो, सो अगर ये x है और अगर ये x है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सेज दैट एंगल, ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल है ना, दिस एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल, मतलब ये एंगल होगा आपका 2x मिला के, करेक्ट, ऑलराइट। तो देन कैन वी से, हम लोग x नहीं लिखेंगे, ओके, लिखना है तो आसान जाता है क्या? सो देयरफॉर कैन वी से दैट, देयरफॉर let us say that angle OPA is equal to angle OAB is equal to x. Okay, now see angle POB, angle POB, ध्यान रखो, POB is an exterior angle, angle POB is equal to x plus x, why? बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर पता नहीं है तो ढूंढ लेना, मैंने बहुत पहले सिखा दिया है और हम लोग बहुत बार यूज भी करते हैं। ओके, x प्लस एक्स, तो कैन वी से दैट एंगल POB इज इक्वल टू 2x, ठीक है, ओके, तो ये दिस एंगल, तो हमारा क्या आया कि ये जो एंगल है ये, दिस वी गॉट एज 2x, करेक्ट, ये आया अपना 2x। ओके, नाउ लेट अस डू द अदर साइड। इन ट्रायंगल, अब ये देखो APO हो गया, अब AQO, इन ट्रायंगल AQO क्या होगा? AQO में देखो, इन ट्रायंगल AQO सिमिलरली OQ इज इक्वल टू OA, OQ इज इक्वल टू OA, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। अभी इस केस में व्हाट वी विल डू इज वी विल से कि इसे हम बोलेंगे y और इसे बोलेंगे y, सो देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA इज इक्वल टू y, करेक्ट। तो देन देखो वापस सेम थिंग, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, करेक्ट, ये यहाँ पर दिस इज द एंगल, ओके, उसे क्या बोलेंगे? देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल BOQ, एंगल BOQ इज इक्वल टू y प्लस y, सो एंगल BOQ इज इक्वल टू 2y, क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर किसी को एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं पता तो ढूंढ लेना जाके, हमने लास्ट टाइम जब भी क्लास में मिले थे तो किया था, ओके ओके। तो देखना अभी यहाँ पे वी गॉट दिस इज इक्वल टू 2y, करेक्ट, यहाँ तक तो सही है। दैट मीन्स ये जो एंगल है BOQ, देखो ये x है तो और ये y है, ये अगर x है तो ये 2x, सी गाइस, सी दिस इज x, कैन यू सी, दिस इज x, if this is x then this is 2x and this is y, so this is 2y, so that means if you add this 2 we can add this 2 also, correct, so then can we say, अच्छा यहाँ पे अगर हम बोलेंगे ये है नंबर 1 और अगर यहाँ पे बोलेंगे ये है नंबर 2 अपना स्टेटमेंट, so therefore can we say, therefore
1 plus 2. If you do 1 plus 2, what will you get? You will get angle POB, angle POB plus, एक minute, I'll write it a little on the top. Okay. Okay, therefore 1 plus 2. So we can say that angle POB और 1 plus 2 करके कुछ फायदा हो रहा है क्या? नहीं, वेट. सो कोई बात नहीं, वेट 1 सेकेंड ना, वी कैन डू दिस स्टिल. ओके, angle POB plus angle BOQ is equal to 2x plus 2y. Okay, that means angle POB plus angle BOQ क्या होता है? एंगल PO, देखो POB, ओके देखो एंगल POB, एंगल POB प्लस BOQ, ये दोनों मिलके पूरा का पूरा बड़ा एंगल हो जाएगा ना, विच इज POQ, करेक्ट, विच इज इक्वल टू POQ. तो यहाँ लिखेंगे हम POQ. देयरफॉर एंगल POQ इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई. और x प्लस वाई कौन सा एंगल हो रहा है? विच इज x प्लस वाई? x प्लस वाई इज दिस कंप्लीट एंगल PAQ, नो? तो ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग. देयरफॉर इट इज इक्वल टू, देयरफॉर एंगल PAQ, सॉरी एंगल POQ is equal to twice of angle PAQ, है ना? यही तो प्रूव करना है ना हमें. सो कैन वी से देयरफॉर हेंस प्रूव्ड, करेक्ट. अभी ओके, तो 10.8 का केस 1 हो गया है. नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज अवर केस 2. स्टेटमेंट तो सेम ही रहेगा क्योंकि केस भी सेम ही है, करेक्ट. तो दिस इज गोइंग टू बी आवर सर्कल, ये सेंटर है. अब इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं? दिस इज आवर कॉर्ड, करेक्ट. दिस इज आवर आर्क. आर्क क्या है हमारा? वी आर गोइंग टू नेम दिस आर्क एज P एंड Q, ठीक है. नाउ P और Q, देखो हमने पहले केस में क्या देखा था कि whenever we draw an arc, तो a circle can have a minor arc and a major arc. तो when you consider a minor arc, your point A on the circumference can lie on the major arc, and if you are going to consider the major arc, then your point A can lie anywhere on the minor arc. इसका मतलब क्या होता है? when you are considering this arc, that means you are considering which angle? this angle POQ, करेक्ट. और हमारा ये R कहाँ पे आएगा? यहाँ पर और यहाँ पर, करेक्ट. ये है हमारा पॉइंट A, ठीक है ना. अब हमको ये बताना है कि ये ब्लू एंगल इज ट्वाइस दिस रेड एंगल. आई गेटिंग इट? ये हमको प्रूव करना है, करेक्ट. उसके लिए क्या करेंगे? हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. दिस इज पॉइंट B and let us see what is given to us. It is given with the center O, a circle with the center O, and arc PQ of the circle subtend same given है, कोई भी फर्क नहीं है. और प्रूफ क्या करना है? सेम प्रूफ करना है. that angle POQ, बट इस बार इस तरफ से, is equal to twice angle PAQ, करेक्ट. PAQ. चलो, तो एक कंस्ट्रक्शन करते हैं पहले. यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हमको ग्रीन में करना है क्योंकि अब लाइन हमने ग्रीन में ली है. ओके, क्या कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर हमारा? सेम जो पहले किया था, कोई भी फर्क नहीं है, सेम प्रूफ है, आपको पता चलेगा. इट्स एन एब्सोल्युटली सेम प्रूफ. कंस्ट्रक्शन क्या है? एक्सटेंड, ये हमारा पॉइंट O है सेंटर का, तो वी विल से दैट एक्सटेंड
OA to B। सेम पहले वाले प्रूफ में हमने क्या किया था, वी हैड टेकन दिस ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 और ये आएगा एक्सटर्नल, करेक्ट। तो अगर आप वो प्रूफ को कंटिन्यू करके देखते हो तो यू विल रियलाइज दैट इट इज़ वेरी इजी। इस बार हमको क्या क्या मिलेगा, तो वी कैन से दैट देयरफॉर इन ट्रायंगल, अच्छा डिवाइड करते हैं क्या, पहले केस 2 है ये, मैं पहले लाइन से डिवाइड कर लेती हूँ सो दैट विल बी लिटिल क्लीन। ओके, सो वी हैव ट्रायंगल APO, ट्रायंगल APO। ट्रायंगल APO में क्या है, देखो दैट OP is equal to OA, OP is equal to OA, correct। Therefore what, radii of the Q, why, because radii of the same circle। Therefore can we say that triangle APO is equal to isosceles triangles। अगर ये isosceles triangle है तो that means इसके जो base angles है ये और ये angle, कलर दूसरा यूज करेंगे, ओके, that means can we say कि इसका जो base है ये this and this, ये दोनों सेम है ना, करेक्ट, दे आर इक्वल। सो देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर एंगल, सो एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल APO, करेक्ट। एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OAP, उसको ले लेते हैं सपोज x, तो ये दिस इज आवर x एंड दिस इज आवर x। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो बाहर हमने निकाला है वो ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। कौन सा, आपको पता चल रहा है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी याद है कि नहीं, नहीं याद है तो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, प्लीज उसको खोल के एक बार पढ़ लेना। ये जो एंगल है ना, ये वाला आई विल जस्ट पुट द सेम कलर हियर, देखो ये वाला, दिस एंगल इज द एक्सटीरियर एंगल फॉर दिस ट्रायंगल। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वी कैन से दैट एंगल POB is equal to x plus x, which is equal to 2x। okay, अच्छा यहाँ पे I am going to make, okay, so we can say that angle POB is equal to 2x, तो यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट 1। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्या है, इन ट्रायंगल, ये सेकेंड ट्रायंगल में इन ट्रायंगल AQO, इन ट्रायंगल AQO क्या है, देखो OQ is equal to, can you see this, OQ is equal to OA, correct, equal to OQ is equal to OA। if OQ is equal to OA, therefore can we say, why, because it is radii of the same circle, correct। now if it is equal, therefore can we say that triangle AQO is isosceles, करेक्ट। अगर वो isosceles है तो दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस एंगल, अभी आई टेक अनदर कलर देयर, कौन सा लिया जाए, रेड लेते हैं, तो कैन वी से दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, करेक्ट। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स अगर ये y है तो ये भी y हुआ, करेक्ट। ओके, सो वी कैन से दैट देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल OAQ is equal to angle OQA which is equal to y। therefore ये जो एंगल है QOB, ये जो एंगल है ना QOB, ये एंगल, दिस एंगल, आई पुट अ बिग रेड कलर देयर, देखो ये वाला, करेक्ट, ये वाला। सो दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट, देयरफॉर एंगल QOB दिस इज इक्वल टू व्हाट, y प्लस y, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ये, करेक्ट, यहाँ पर भी। देयरफॉर एंगल QOB इज इक्वल टू 2y। ओके, 1 and 2 ऐड कर लो, क्या मिलेगा देखो तो, देयरफॉर 1 plus 2। if you add 1 plus 2 you will get angle POB plus angle QOB is equal to 2x प्लस 2y। ओके, अब याद रखो 2x प्लस 2y ये एंगल बन जाता है पूरा, देखो कैन यू सी दिस,
ये वाला, ये रेड वाइट कलर का पूरा लाइन, ये पूरा, करेक्ट, ओके। देन वी कैन से दैट देयरफॉर, अच्छा पी ओ बी कौन सा एंगल बनता है, देखो पी ओ बी और क्यू ओ बी, पी ओ बी एंड क्यू ओ बी, ये जो रेड और येलो करके रखा है ना, वो एंगल बनता है, राइट। सो देन देयरफॉर कैन वी से दैट दैट इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 into एंगल x plus y, और x plus y is which angle, it is PAQ, correct. Therefore angle POQ, angle POQ, POQ is equal to 2 into एंगल PAQ, करेक्ट। तो ये प्रूफ किया हमने, पता चला आपको, खुद करो तो ज़्यादा पता चलेगा। Maths is a subject where you have to get your own hands dirty. POQ is equal to PAQ, hence proved. यही तो प्रूफ करना था हमको. This is hence proved. Correct? Okay. तो अभी लास्ट केस है इसका, वो देख लेते हैं क्या है. सो स्टेटमेंट ऑफ थियरम है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. ये तो हम लोग इतना इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं. I mean really we use this property a lot and you should really know it properly. Okay. ये सर्कल है हमारा, इसमें ये सेंटर है, ये हमारा डायामीटर है, करेक्ट, ओके। अब ये एंगल बन रहा है हमारा सेमी सर्कल में. अब इफ दिस इज द डायमीटर, तो ऑब्वियसली दीज टू आर सेमी सर्कल्स, ये एंगल इज इन द सेमी सर्कल. करना क्या है, गिवन क्या है, C is a circle with center O, PQ is a diameter, तो नाम दे देते हैं हमने, मैंने दिया नहीं, सॉरी, ये PQ is the diameter of the circle subtending angle PAQ at the point A. तो ये A है यहाँ पर, ओके, ये एंगल यहाँ पे दिया है, ओके. We have to prove that this PAQ is 90 degree. इतना आसान है ये. We are going to take the help of the previous two theorems that we did and we are going to do this theorem, ओके. देखो लिखना ही मतलब एक, ओके, क्या करना है, सिंस PQ इज द डायामीटर, क्या वो स्ट्रेट लाइन हुई कि नहीं हुई, करेक्ट, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड. तो ये जो एंगल है सेंटर पे, वो कितना हुआ फिर, 180 हुआ ना. देयरफॉर एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू, एंगल एट द सेंटर is equal to how much, it is equal to 180 degree, correct. अगर एंगल एट द सेंटर is equal to 180 degree, then can we say that angle at the circumference is equal to half the angle at the center, correct. And then can we say that since angle at the circumference, ओके, हमने ऐसा सीखा है इसको कि एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफरेंस, ट्वाइस इनटू एंगल एट द सर्कमफरेंस, करेक्ट. अब के हमने जो दो किए हैं उसमें वही देखा है. That means we can say that therefore angle at the center is equal to angle POQ is equal to twice the angle PAQ, है ना. So POQ का डिग्री कितना है, 180, और PAQ हमको पता नहीं है, लेकिन इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं. 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एंगल PAQ. तो therefore PAQ कितना हुआ भाई, 90 डिग्री हुआ कि नहीं, करेक्ट. therefore it is equal to 90 degree is equal to PAQ, hence proved. तो ये प्रूफ्स है, इम्पॉर्टेंट प्रूफ्स है. प्रॉपर्टीज हमको बहुत यूज करने हैं. यू शुड नो हाउ टू डू दिस, करेक्ट.
if you are able to do these proofs by yourself, trust me, you will be able to do any sum in this lesson. Okay, I'll be uploading another video which will have some important examples or important sums that have been solved from this chapter. Okay, but you have to do the exercises from this chapter any which way. These are the theorems of this chapter. Please practice this theorem. By then I will share the important sums as well. Okay, thank you so much. Wish you all the best, guys. Tada, bye bye.